हालेलुया। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की When the स्तुति हो। Holy Spirit comes upon your life, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर आता there है is great boldness in your life. तो आपके जीवन में महान साहस होता है। God wants to do great exploits for person who has got boldness in their life. जिन व्यक्तियों के जीवन में महान साहस है, परमेश्वर उनके जीवन में महान काम करना चाहते Because हैं। God will not use a person who is timid and who is afraid. क्योंकि परमेश्वर डरपोक और डरे हुए व्यक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। God has not given us a spirit of fear, but power, love, and of sound mind. परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी A है। Christian life is a life of boldness, my friend. मसीह जीवन मेरे दोस्तों ये तो साहस का जीवन है। If you do not have boldness, अगर आपके पास साहस नहीं है you cannot stand in the kingdom of God. तो आप परमेश्वर के राज्य में खड़े नहीं रह This सकते हैं। morning, God is looking for people who will be able to do great exploits for Him when people have boldness in their life. और आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके जीवन में साहस हो और वो परमेश्वर के लिए महान काम करते चले जाएं। When you want to see revival happening in your life, जब आप अपने जीवन में जागृति होते हुए when देखना you चाहते want to हैं, see a transformation taking part in your family, जब आप चाहते हैं कि आपके परिवार में बदलाव होते हुए देखें, when you want your children to be transformed, जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बदल जाएं, you know, these days there's so much of pressure from all the things of the world that the people, our children are being dragged into the world. इन दिनों में संसार की ओर से इतना ज्यादा दबाव है कि हमारे बच्चे संसार की ओर खींचे चले जाते हैं। So many things are because of the social media, children are being pulled into all kinds of direction. सोशल मीडिया के कारण जो बच्चे हैं वो तो हर तरह की दिशा में खींचे जाते But हैं। this is the time we have to have boldness. इस समय हमारे अंदर ये हियाव होना चाहिए। We have to stand with boldness in the presence of God and stand and raise the standard of God in our life. हमें हमारे जीवन में इस समय बड़े परमेश्वर के हियाव के साथ में खड़े रहना और परमेश्वर का झंडा खड़ा करना Do है। you want to see a revival happening in your life? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जागृति Do होते you हुए want to देखें? see a change in your family life? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन में बदलाव देखना You चाहते want हैं? to see a change and transformation in every area of your life? क्या आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हैं? Then you have to have boldness and great courage to face every situation in your life. तो आपके पास में बड़ा साहस हो और आपके जीवन की हर एक परिस्थिति का आप सामना करने वाले हो। The key to that ingredient and the fire to be in your life is boldness. और इन सारी घटकों का, इन सारी बातों का आपके जीवन में होना और आपके जीवन में आग का होना, इसके लिए तो साहस ही सबसे जरूरी है। Let us turn to Proverbs chapter 28 verses 1. आइए नीति वचन अध्याय 28 वचन 1 देखते हैं। Proverbs 28 verses 1, it says, "The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold like a lion." नीति वचन 28:1 कहता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। This is not for weak persons. ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है। The Bible says the righteous are bold like a lion. बाइबल कहती है कि जो धर्मी है वो तो सिंह के समान साहसी होते हैं। Boldness is in the move of God. जो साहस है वो तो परमेश्वर के चलन में है। What is the greatest hindrance that people are seeing in their life? लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी देखते हैं? Why they are not able to see a breakthrough in their life? वो अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं देख पा रहे हैं? Because they are very timid and they are very afraid. They are full of fear. क्योंकि वो तो डरपोक है, वो डरे हुए हैं और वो भय खा चुके हैं। They want revival in a very silent manner in their life. वो तो अपने जीवन में बहुत ही चुपचाप तरीके से जागृति चाहते Without हैं making any effort, they want revival. और बिना किसी परिश्रम के वो जागृति चाहते In हैं। order to have the move of God, परमेश्वर के चलन के लिए, to have a revival, you need boldness in your life. जागृति के लिए आपको अपने जीवन में वहां पर साहस की जरूरत है। It doesn't mean you have to be arrogant. इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकारी हो जाएं। Yes, if you are arrogant, it means you're talking only about yourself, my ego. अहंकारी का मतलब ये है कि केवल आप अपने बारे में मैं, मेरा, इस तरह से अहंकार से कहते हैं। But boldness is Him and it is Him only. लेकिन साहस ये है कि ये केवल वो है और केवल वो ही है। It is Him, at Jesus, we point to Jesus and He is the
author and finisher of our life. या हम तो केवल यीशु की ओर दिखाते हैं कि ये तो वो है और वही हमारे जीवन का कर्ता और सिद्ध करता है। Boldness points a way to Jesus. और जो साहस है वो तो यीशु की ओर मार्ग दिखाता The है। Bible says the wicked flee when no man pursues. बाइबल कहती है कि जब कोई मनुष्य दुष्ट का पीछा भी नहीं करता तो भी वो भागता है, But the righteous are bold like a lion. परंतु जो धर्मी है वो तो सिंह के समान निडर या साहसी होता है। When you look at the apostle, what was their greatest characteristic? जब आप प्रेरितों को देखते हैं तो उनका सबसे बड़ा स्वभाव गुण क्या था? Apart from being filled with the Holy Spirit, they were filled with boldness. पवित्र आत्मा से भरे जाने के साथ साथ वो तो साहस से भरे हुए थे। That is why we need to be filled with the Holy Spirit this morning. और इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा से भर जाना बहुत जरूरी है। Because the Holy Spirit is the one who gives you boldness in your life. क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपके जीवन में आपको साहस देता है। When we see in the Acts of Apostles, when Peter and John raised the paralytic, they had boldness. और जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े व्यक्ति को खड़ा किया तो उनमें साहस था। They did not say that this person was paralytic, how can we do it? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति तो लंगड़ा है या झोले का मारा, हम इसे कैसे कर सकते They हैं। saw Jesus rebuking all kinds of demonic powers, and they saw and they did the same thing with this paralytic. और उन्होंने तो यीशु मसीह को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उस परेशानी को दूर करते हुए देखा और इसी तरह से पतरस और यूहन्ना ने भी इस लंगड़े व्यक्ति को खड़ा किया। The Holy Spirit is the one who gives you boldness to face in the face of death. पवित्र आत्मा आपको साहस देता है कि आप मृत्यु का सामना कर सके। Yes, they were a bold bunch. Peter and John and all the disciples were a bold bunch. They were not afraid of the tradition of that time. और ये जो पतरस और यूहन्ना और वो सभी लोग जो हैं वो तो साहस रखने वाला समूह था। उस समय के वो किसी भी लोग से नहीं डरे थे। They were threatened and they were arrested, they were beaten, but they were still rejoicing and they were filled with boldness. उन्हें धमकाया गया, उन्हें कैद किया गया, उन्हें बेतों से पीटा गया, लेकिन फिर भी वो आनंद मनाते चले गए क्योंकि वो तो साहसी थे। Yes, the boldness comes with a confidence in God. जो साहस है वो तो परमेश्वर पर भरोसा रखने से आता है। In the boldness comes in the confidence of God and His ability and is be able to help you to trust you in His word. और ये जो साहस है वो तो परमेश्वर पर भरोसा रखने से आता है और ये योग्यता तो उसके वचन पर भरोसा करने से होती है। He said, I will not leave you nor forsake you. उसने कहा कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। If God says, I will not leave you nor forsake you, you have to trust Him. अगर परमेश्वर कहे कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा तो आपको उस पर भरोसा रखना होगा। No, Psalm 125 verses 1 it says that they that trust in the Lord are like Mount Zion, they shall not be moved or not be shaken. भजन संहिता 125 से कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। You have to have boldness to walk to a lame person and say, look at me. और आपके पास में तो साहस होना चाहिए कि आप एक लंगड़े व्यक्ति के पास में जाए और उससे कहे कि मेरी ओर देखो। He said, look upon us. उसने कहा कि तुम मेरी ओर देखो। That is the kind of boldness you need to have. आपके पास में ऐसा साहस होना चाहिए। What happened when the person who was lame looked at Peter? और जब उस लंगड़े व्यक्ति ने पतरस की ओर देखा तो क्या हुआ? He was expecting an arm from Peter. वो तो पतरस की ओर से कुछ भीख पाना चाहता What था। did Peter say? लेकिन पतरस ने क्या Said, कहा? silver and gold I have none. उसने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं But in है, the name of Jesus, लेकिन यीशु के नाम में rise up and walk. उठ और चल फिर। That is boldness, my friend. मेरे दोस्तों यही तो साहस है। Yes, to know that God will back him in every time he uses the name of Jesus. और वो ये जानना कि जब भी वो यीशु के नाम का उपयोग करेगा परमेश्वर उसके पीछे खड़े रहेंगे। It takes boldness to lift a person who's lame and say that in the name of Jesus you are healed. और इसके लिए साहस लगता है कि उस लंगड़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करे और कहे कि यीशु के नाम में तू चंगा हो चुका है। Great men of God, they used to memorize this word and they used and exercised boldness in their life. That is why God used them mightily in their life. परमेश्वर के महान जनों ने इन वचनों को, इन बातों को अपने मन में याद कर लिया था और परमेश्वर ने इसीलिए तो उनके जीवन में उनको
उनको साहसी रीति से उपयोग किया। These men of God were bold and they were able to exercise authority because they knew that God will back up every time they use the word of God. और ये लोग तो साहसी थे, वो निश्चय जानते थे कि जब भी यीशु के नाम का उपयोग करेंगे तो उसके पीछे परमेश्वर उनके साथ में खड़े रहेंगे। God wants to put the gift of faith on each and every one of us this morning. परमेश्वर आप में से, हम में से हर एक के ऊपर विश्वास का वरदान रखना चाहते हैं। When the gift of faith comes upon our life, fear and doubt leaves us and we are filled with supernatural boldness in our life. जब विश्वास का वरदान हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से डर चला जाता है और हम निश्चय हियाव से भर जाते हैं, साहस से भर जाते हैं। It means you'll be dare to do anything for God. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करने की हिम्मत रखेंगे। You'll do great exploits for God. आप परमेश्वर के लिए महान काम करते जाएंगे। This morning, are you willing to have boldness in your life, my friend? मेरे दोस्तों, क्या आज आप अपने जीवन में साहस रखना चाहते हैं? If you are a timid person, अगर आप एक डरपोक व्यक्ति हैं, if you are a person filled with fear, अगर आप डर से भरे हुए व्यक्ति हैं, God wants to transform you. परमेश्वर आपको बदलना God चाहते wants हैं। to change you. परमेश्वर आपको बदल देना चाहते If हैं। you are a timid and a person, very fearful person, अगर आप डरपोक व्यक्ति हमेशा डरे हुए रहते हैं, you cannot change your environment. तो आप अपने वातावरण को नहीं बदल सकते You हैं। cannot change where you are. आप जहाँ हैं उसे नहीं बदल सकते But हैं। when you are filled with the supernatural boldness of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के ईश्वरीय साहस से भर जाते हैं, you'll move from an ordinary realm to a supernatural realm. तो आप एक साधारण से क्षेत्र से ईश्वरीय क्षेत्र में आ जाते हैं। God will do mighty and great things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य और महान काम The करेंगे। power of God will be able to transform you from a ordinary person to a supernatural person. परमेश्वर की सामर्थ्य आपको पूरी तरह से बदल देगी, एक साधारण व्यक्ति से आपको ईश्वरीय व्यक्ति बनाएगी। God is looking for people who will be able to dare to do for Him. परमेश्वर आपको ऐसे व्यक्ति बनाएंगे जो परमेश्वर के लिए कुछ करने की हिम्मत रखेंगे। I dare you this morning to take up spirit of boldness in your life and do great exploits for God. आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि परमेश्वर की ये साहस की आत्मा अपने जीवन में ले ले और उसके लिए महान काम करते चले I जाएं। dare to you this morning to take the name of Jesus. आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप यीशु के नाम को लें। I dare to you this morning to take the word of God in your life. आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले ले। Peter denied Jesus 3 times. पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था, But when he was filled with the Holy Spirit, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, transformation came in his life. उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। A big change came over his life. उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। From a timid and person who was afraid, he became a bold person. एक डरपोक व्यक्ति, एक डरे हुए व्यक्ति से बदलकर वो साहसी व्यक्ति बन गया। When you have boldness in your life, जब आपके जीवन में साहस होता है you are going to see a great harvest coming upon your life. तो आप अपने जीवन में बड़ी फसल को आते हुए देखते हैं। Great miracles will happen in your life. आपके जीवन में महान चमत्कार होंगे। Signs and wonders will happen in your life. आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे। Do you expect great things coming into your life, my friend? मेरे दोस्तों, क्या आप अपेक्षा करते हैं कि आपके जीवन में महान काम होते चले जाएं? Peter was filled with the Holy Spirit. पतरस पवित्र आत्मा से भर गया, And that is the key to boldness in your life. और यही तो आपके जीवन में साहस के लिए कुंजी है। This is what God wants each and every one of us to be filled with the Holy Spirit and be anointed with the Holy Spirit. और यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। Every single person who is filled with the Holy Spirit हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है will be able to speak the word with boldness. वो तो बड़े साहस से परमेश्वर का वचन बोलता जाएगा। During this time and the time to come, you will be filled with boldness. अभी इस समय और आने वाले समय में आप साहस से भर जाएंगे। You have been born for this day to exercise boldness in your life, my friend. मेरे दोस्तों, आप इसी दिन के लिए जन्मे हैं कि अपने जीवन में आप साहस का अनुभव करते जाओ, उसमें काम करते जाएं। God has raised you for this moment in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको इसी समय के लिए तैयार किया है। You're not a person who should go back. आप ऐसे व्यक्ति नहीं कि जो पीछे चले जाएं। You're not the person who should surrender to your fear and to your timidity in your life. आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में अपने डर के सामने आप समर्पण कर दें। The Bible says perfect love
casteth out fear. बाइबल कहती है कि जो सिद्ध प्रेम है वो डर को दूर कर देता Yes, है। if you are in perfect love of God, अगर आप परमेश्वर के साथ सिद्ध प्रेम में हैं, if things are completely changed and your mindset is changed and you're focusing on God and the love of God, जब तक कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में नहीं आती और आप अपने जीवन में इस डर से बाहर निकल कर नहीं आते हैं, yes, God cannot use you. तो परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर सकते। Signs and wonders cannot happen in your life. आपके जीवन में चिन्ह, बातें और ये सब अद्भुत काम नहीं हो सकते You हैं। may ask me why I need boldness in my life this morning. आप शायद मुझसे पूछे कि मुझे आज हमारे जीवन में, मेरे जीवन में क्यों साहस की My जरूरत friend, है। if you do not have boldness in your life, मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन में साहस नहीं है, you cannot see signs and wonders happening in your life. आप अपने जीवन में चिन्ह और अद्भुत कामों को होते हुए नहीं देख पाएंगे। God wants to do great signs and wonders in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान चिन्ह और अद्भुत काम करना चाहते हैं। Every person who is filled with the Holy Spirit हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, will be able to speak the word with boldness. वो तो साहस से परमेश्वर का वचन बोल पाएगा। Yes, God wants you to move away from fear into love and great boldness. परमेश्वर चाहते हैं कि आप डर से बाहर निकले और प्रेम में और बड़े साहस के व्यक्ति हो जाएं। This morning I want you to confront your fear, my friend. मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज आप अपने डर का सामना करें। You can ask me this morning, how can I confront my fear? आप शायद मुझसे ये कहें कि मैं अपने डर का सामना कैसे करूं। You have to be in perfect love and in perfect communion with God. आपको परमेश्वर के साथ में सिद्ध प्रेम में और सिद्ध संगति में रहना होगा। Christian life is not a life of religion. मसीह जीवन तो ये केवल धर्म का या आस्था का जीवन नहीं। Christian life is a life of relationship. मसीह जीवन ये तो संबंध का जीवन है। When you have a relationship with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के साथ में संबंध रखते हैं, when you have a real relationship with the third person of the Trinity, और जब आप सच में त्रिएकता के तीसरे व्यक्तित्व के साथ में सच्चा संबंध रखते हैं, you will not be the same person. तो आप फिर पहले जैसे व्यक्ति नहीं You will be रहेंगे, a different person. आप अलग व्यक्ति हो जाएंगे। There will be a great transformation taking place in your life. आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो जाएगा। The power of God will take over your life परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर अधिकार करेगी, because the Holy Spirit gives you the boldness in your life क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपको साहस देता to है confront every fear and to head on collision with the fear in your life. कि हर एक डर का सामना करे और अपने जीवन से हर एक डर को निकाल दे। The wicked flee when no one pursues, जब कोई पीछा करता भी नहीं है तो भी दुष्ट व्यक्ति भागते रहता है, but the righteous are bold like a lion. लेकिन जो धर्मी है वो तो सिंह के समान निडर होता है, साहसी होता है। If you are in fear and intimidated, अगर आप डरे हुए हैं और आप बिल्कुल ऐसे भय में हैं, you have slipped out. तो आप फिसल गए हैं। But this morning God wants to give you a new power in your life. लेकिन परमेश्वर आज आपको आपके जीवन में नई सामर्थ्य देना He चाहते wants हैं। you to be transformed in your life. वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदल जाएं। He wants to renew your mind this morning. वो चाहते हैं कि आज आपके मन को नया बना दें। He wants to bring a great transformation in your life. वो चाहते हैं कि आपके जीवन में महान बदलाव लेकर आए। He wants you to be filled with the Holy Spirit this morning, filled completely drunk with the Holy Spirit. वो चाहते हैं कि आज आप पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा से मतवाले हो जाए। When you're drunk with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से मतवाले हो जाते हैं, you will have boldness in your life. तो आपके जीवन में साहस होता है। You will scare everybody around you because they'll see the power of God working in your life. आप अपने आसपास के सभी को डराएंगे क्योंकि वो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को काम करते हुए The देखेंगे। only way you can do it is the ingredient of the Holy Spirit to come over your life. और एक ही तरीके से आप इसे कर सकते हैं और वो है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ I जाए। believe in the years to come, God is going to anoint you this morning with the mighty power in your life, my friend. मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय आने वाले समय में परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से अभिषेक देंगे। Even though Peter denied Jesus 3 times, yet when he was restored, person was filled with boldness. यहाँ तक कि पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था, लेकिन जब उसने फिर से उससे मेल मिलाप किया तो उसे साहस दिया गया। When Jesus was walking on the water, जब यीशु पानी पर चल रहे थे, it was Peter who said,
Lord, can I come to you? और ये तो पतरस ही था जिसने कहा कि प्रभु क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ। He had that kind of boldness in his life. उसके जीवन में इस तरह का साहस था। God wants you to have that kind of boldness in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में इस तरह का साहस हो। God wants you to be completely transformed in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अपने जीवन में बदल जाएं। The greatest ingredient a Christian can have is boldness in his life, my friend. मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो किसी विश्वासी के अंदर हो सकती है वो तो साहस है मेरे दोस्तों। Boldness was a natural nature to Peter when he was filled with the Holy Spirit. और पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया तो ये साहस उसके लिए एक स्वाभाविक स्वभाव बन गया। Yes, you can ask this morning to God, Lord, fill me with boldness and fill me with your anointing of the Holy Spirit. आज आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझे अपने साहस से और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। And God will do it as he did to the apostles. और जैसे परमेश्वर ने इसे प्रेरितों के लिए किया, परमेश्वर आपके लिए भी इसे करेंगे। This morning I don't care how timid you are, my friend. मेरे दोस्तों, आज मुझे परवाह नहीं कि आप कितने भी डरे हुए क्यों ना हो, डरपोक क्यों ना But हो, when you're filled with the Holy Spirit this morning, लेकिन जब आज सुबह आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं you'll have boldness beyond your understanding. तो आपकी समझ से परे आप में साहस होगा। The Bible says in Acts of the Apostles chapter 4, they went back to their own company and they started rejoicing and they prayed for boldness. और बाइबल कहते प्रेरितों के काम में कि वो तो अपने साथियों के पास वापस गए और वो बड़ा आनंद मनाने लगे और साहस से प्रचार करने लगे। God is going to fill you with boldness to shame the devil this morning. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको साहस से भर देंगे ताकि शैतान को शर्मिंदा कर दे। God is going to transform you and to use you mightily in the place where you are. और आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर आपको बदल देंगे और बहुत ही सामर्थ्य रीति से आपका उपयोग करेंगे। And you're going to do great exploits for God. और आप परमेश्वर के लिए महान काम करते जाएंगे। The whole of your place where you are in आप जहाँ भी है उस पूरी जगह में will see a transformation because you're filled with boldness. आप वो सारी जगह तो आपके अंदर बदलाव को देखेगी क्योंकि आप साहस से भर गए हैं। God wants to do something wonderful in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करना God चाहते wants हैं। to do something mighty in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ सामर्थ्य काम करना God चाहते wants हैं। to do something great in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही महान काम करना चाहते But for हैं। that you have to yield your life to the Lord Jesus Christ. लेकिन इसके लिए आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना होगा। When you yield your life to the Lord Jesus Christ, जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, you'll not be the same person. आप फिर पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहते You'll हैं। be a person who is completely transformed. आप ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो पूरी तरह से बदल गया है। Before Jesus was resurrected, इसके पहले कि यीशु का पुनरुत्थान हो, all the disciples were so afraid that they were in a closed room. सारे चेले तो इतने डरे हुए थे और वो तो एक बंद कमरे में थे। But when they were filled with the Holy Spirit, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, the supernatural boldness came over their life. उनके जीवन के ऊपर में अलौकिक साहस आ गया। They turned from a person, people who were very timid, to a person who became very bold. वो तो डरपोक व्यक्ति से बदलकर बहुत ही साहसी व्यक्ति हो गए। God wants to do something great in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान काम करना चाहते God wants हैं। to do great exploits in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान विस्फोटक काम Are करना you चाहते हैं। willing to completely surrender to the Spirit of God this morning? क्या आज सुबह आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा को समर्पण करने When के लिए you तैयार हैं? surrender yourself complete to the Spirit of God, जब आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा के लिए समर्पित कर देते हैं, you'll see miracles happening in your life. तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में महान काम हो रहे हैं। Everything around you will change. आपके आसपास सब कुछ बदलते चला Signs जाएगा and wonders will be happening in your और life. चिन्ह और महान काम आपके जीवन में होते Power of जाएंगे। God will be released in your life. परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में There will खोली be a जाएगी। change in your family. आपके परिवार में बदलाव आएगा। There will be a power of God moving in your family. परमेश्वर की सामर्थ आपके परिवार में काम The करेगी। anointing of God will be upon your family. परमेश्वर का अभिषेक आपके परिवार पर You will होगा। be a person from an ordinary person to a true supernatural person. आप एक साधारण व्यक्ति से एक अलौकिक या ईश्वरीय व्यक्ति में बदल Do you जाएंगे। want that boldness in your life this morning? मेरे दोस्तों, क्या आज आप इस साहस को अपने जीवन में चाहते हैं? Do you want that power of God in your life? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ चाहते हैं? That can only happen when you
yield yourself to the Holy Spirit. ये तो केवल तब होता है जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित कर देते हैं। When you surrender your life and you completely yield yourself to the Holy Spirit. जब आप अपना जीवन समर्पण करते हैं, पूरी तरह से खुद को उसे समर्पित कर देते When हैं। you give yourself completely and be available to the Holy Spirit. जब आप अपने आप को पूरी रीति से दे देते हैं और पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध होते हैं, You will move from an ordinary person to an extraordinary person. तो आप एक साधारण व्यक्ति से बदलकर आप एक असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं। If this word has blessed you this morning, अगर इस वचन ने आज आपको आशीष दी है, our number is on the screen. तो हमारा नंबर अभी स्क्रीन पर है। You can call on us and you can WhatsApp us. आप हमें फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते Our हैं। prayer warriors are ready to receive your call. हमारे प्रार्थना योद्धा आपके कॉल को लेने के लिए तैयार हैं। This morning I want you to ask God for boldness in your life. आज सुबह मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर से साहस मांगे। Tell God, Lord, I've been a timid person all my life. पर प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने पूरे जीवन भर एक डरपोक व्यक्ति बना This रहा। morning I want to be a person filled with boldness. आज मैं ऐसा व्यक्ति होना चाहता हूं जो साहस से भरा है। When you pray from your heart, जब आप अपने हृदय से प्रार्थना God करेंगे, will answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful morning. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, इस अद्भुत सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। As we looked into your word, जैसे हमने आपके वचन में देखा, Proverbs 28:1 says, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold like a lion. जो नीति वचन 28:1 कहता है, जब कोई पीछा नहीं करता है तब भी दुष्ट भागते रहते हैं, परंतु धर्मी जन सिंह के समान निडर होते हैं। Give us that supernatural boldness this morning, आज हमें वो ईश्वरीय साहस दीजिए, so that we may stand up and be a witness for you. ताकि हम खड़े हों और आपके लिए गवाह हो Be जाएं। with us and guide us. हमारे साथ होइए, हमारा मार्गदर्शन In कीजिए। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, Amen. आमीन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him.